امان، دل اور ایشمل تینوں جس وقت سے روم میں آئے ہوئے تھے، امان کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ اس نے کتنی بار دل کو منع کرنا چاہا تھا کہ ایشمل کو نہ لے چلو، لیکن دل نے اسے اگنور کر دیا۔ ابھی وہ دونوں بیڈ پر لیٹی اپنی باتوں میں مصروف تھیں۔ شاید دل اسے کوئی کہانی سنا رہی تھی۔ صوفے پر بیٹھا ہوا امان انہیں کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، دیکھ کم بلکہ گھور رہا تھا۔ لیپ ٹاپ آن کر کے وہ ایسے شو کر رہا تھا جیسے کوئی کام کر رہا ہو، حالانکہ اس وقت اسے کوئی کام نہیں تھا۔ امان، ایشمل سو گئی ہے، آپ بھی آ کر سو جائیں۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے جب اسے دل کی آواز سنائی دی، لیکن امان اسے اگنور کر کے اب لیپ ٹاپ اٹھا کر اپنے آگے سے ٹھیک کر کے رکھ چکا تھا۔ دل نے ایشمل کو اپنی دائیں جانب سلایا ہوا تھا، کیونکہ وہ بھی جانتی تھی کہ امان اس سے ناراض ہے اور وہ اسے منائے گی، باتیں کرے گی تو ایشمل درمیان میں ہونے کی وجہ سے واپس جاگ جائے گی۔ اس نے ایشمل پر اچھی طرح سے کمفرٹر دیا اور امان کو دیکھنے لگی، جو سر جھکا کر لیپ ٹاپ میں گھسا ہوا تھا۔ دل کو اس کی پیشانی ہی نظر آ رہی تھی، جہاں بے شمار شکنیں پڑی ہوئی تھیں۔ ماں نہ جائے نا، اب باقی کام صبح کر لیجیے گا۔ دل نے اسے اپنے پاس بلانے کی ایک بار اور کوشش کی، لیکن امان اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اس کے سیل پر بیپ ہوئی تو وہ اٹھ کر بالکنی میں چلا گیا۔ ہاں بولو، اپنا کام کر لیا ہے کیا جو مجھے کالز کیے جا رہی ہو؟ بالکنی میں آتے ہی امان نے مینا کی کال پک کی اور اس سے پوچھنے لگا، ہاں میں نے اپنا کام کر لیا ہے، آج اسی وجہ سے تمہارے گھر بھی آئی تھی، لیکن تم گھر ملے ہی نہیں۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے اس دوست اور زنیرہ نے مجھے کتنا بے عزت کیا؟ پہلی فرصت میں ذرا ان دونوں کو اپنے گھر سے نکالو نا تم۔ امان کے گھر سے جانے کے بعد وہ غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ اس نے کتنی بار امان کو کالز کی، لیکن اس نے ایک بار بھی کال پک نہیں کی۔ اس لیے جیسے ہی امان نے کال پک کی، وہ غصہ کرنا شروع ہو گئی۔ کیا فضول قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ مراد اور زونی کے بارے میں ذرا تمیز سے بات کیا کرو، مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ کام ہو گیا تھا تو مجھے کال کر کے بتاتی نا، ایسے روز منہ اٹھا کر گھر کیوں چلی آتی ہو؟ ایسے اچھا لگتا ہے کیا؟ امان کو تو اس سے بھی زیادہ غصہ تھا اس پر۔ آج پھر سے ایک بار دل اس سے بدگمان ہو جاتی، وہ بھی صرف اور صرف مینا کی وجہ سے۔ اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا دل کا یوں اداس رہنا۔ اس کی خالی آنکھیں امان کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھیں اب۔ اس سے پہلے کہ مینا کوئی جواب دیتی، امان کو اپنے روم سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ بالکنی سے اندر دیکھنے لگا، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ اچھا، میں 2-3 دن تک تم سے ملنے آؤں گا یا بتاؤں گا ایزی ہو کر کہ کب اور کہاں ملنا ہے، بائے۔ دل کے کرانے کی آواز سن کر اس نے جلدی سے الوداعی کلمات ادا کیے اور کال ڈراپ کرتے ہوئے واپس روم میں آ گیا۔ دل بیڈ کے پاس ہی نیچے گری ہوئی تھی اور اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ امان بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ دل، کیا ہوا؟ کیوں کھڑی ہو رہی تھی؟ کچھ چاہیے تھا؟ مجھے نہیں کہہ سکتی تھی، لگی تو نہیں نا؟ اسے سنبھال کر وہ اپنی گود میں اٹھاتے اور بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، اور نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھتے سوال پر سوال کرنے لگا۔ آپ کو بلایا تھا، آپ سن ہی نہیں رہے تھے، اس لیے سوچا کہ اٹھ کر آپ کے پاس آؤں، تو جیسے ہی 3 قدم چلی تو گر گئی۔ فزیولوجسٹ کی محنت کی وجہ سے دل 1-2 قدم ڈال رہی تھی، پہلے تو اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ دل ایمان میری چندہ، تم کیوں نہیں سن رہا تھا میں تم کو؟ مجھے کال آ گئی تھی تو تم کیوں اٹھ گئی؟ ادھر دکھاؤ مجھے، پاؤں پر کہاں لگی ہے؟ پیار سے دل کے گال کو چھوتے امان نے اس کی ٹانگیں سیدھی کی اور پنڈلیوں سے ٹراؤزر اوپر کر کے دیکھنے لگا۔ نہیں مان، نہیں لگی مجھے، بس ایسے ہی بیلنس نہیں رہ پایا میرا، تو گر گئی۔ آپ اوپر بیٹھیں، ایسے نیچے کیوں بیٹھے ہیں؟ کچھ نہیں ہوا مجھے۔ ایشمل کے پاس ہوتے ہوئے وہ آہستہ آواز میں امان کو بھی اوپر بیٹھنے کا بول رہی تھی، جو بیڈ سے نیچے کارپیٹ پر بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، آج تو دل خود ہی بلا رہی ہے۔ ہاں ہاں بولو، میں کیا سمجھوں؟ بٹ کیا فائدہ یار، میں ناراض ہوں تم سے۔ تم ایشمل کو اپنے ساتھ کیوں لے کر آئی؟ شوق ہوتے ہوئے امان نے اسے شرمانے پر مجبور کر دیا۔ پھر جب اوپر بیٹھتے اس کی نظر ایشمل پر گئی تو منہ بسوڑ کر مصنوعی ناراضگی دکھانے لگا۔ مان، ایسے ناراض نہ ہوا کریں، اب وہ آ رہی تھی تو میں منع کرتی کیا؟ نہیں نا، کیا کہتی کہ نہ چلو میرے ساتھ؟ غصے سے آنکھیں بڑی کرتی وہ امان کو ڈانٹنے لگی۔ پیار لٹاتی نظروں سے دل کو دیکھتے امان نے اسے اپنے حصار میں لیا تو ایشمل کے رونے کی آواز آنے لگی۔ دل ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور ایشمل کو دیکھنے لگی، وہ جو آنکھیں مسل رہی تھی اور ماما ماما پکار رہی تھی۔
इशी चंदा क्या हुआ, मैं हूं ना आपके पास। दिल उसके बालों में हाथ फेरते प्यार से पिचकारने लगी, लेकिन इश्मल के रोने में और रवानी आ गई। मामा के पास जाना है मुझे, मामा के पास जाना है। वो रोते हुए एक ही रट लगाए हुए थी, शायद कच्ची नींद से जागी थी, इसलिए जुनैरा को ढूंढ रही थी। दिल ने एक नज़र पीछे मुड़कर अमान को देखा, जो उसे घूर रहा था, जैसे कह रहा हो कि और लेकर आओ साथ। मान प्लीज़ इश्मल को जुनैरा आपी के पास छोड़कर आ जाएं, प्लीज़। इश्मल के रोने से भी जब वो अपनी जगह से नहीं हिला तो दिल मिन्नत आमेज लहजे में उसे इश्मल को ले जाने का कहने लगी, क्योंकि उसकी घूरियों को देखते हुए उसे लगा कि अभी वो कहेगा कि खुद जाकर दे आओ। क्यों लेकर जाऊं मैं, यहीं सुलाओ ना अपने पास, जैसे लेकर आई थी। अमान ने एक नज़र बैठी इश्मल को देखते हुए तंजिया लहजे में कहा, लेकिन फिर उसे रोते देखकर खुद ही उठकर चला गया और उसे उठाते हुए बाहर निकल गया। कैसे हो अमान, नाराज़ हो मुझसे? सॉरी यार, उस दिन बस बहुत गुस्से में थी, तो इसी वजह से मुराद लोगों के लिए ऐसे बोल दिया। छोड़ो ना, अब ये नाराज़गी छोड़ दो यार। देखो ना, मैं तुम्हारी बात मानकर पापा की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा चुकी हूँ। आज 2 दिनों के बाद अमान ने मीना को पास के एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। वो जिस काम से गुरेज बरत रही थी, अमान उससे वही करवा रहा था। अभी वो दोनों अपनी रिजर्व टेबल पर आमने सामने ही बैठे हुए थे। अमान का चेहरा हमेशा की तरह किसी भी तासुर से आरी था, जिसका नतीजा मीना ने यही निकाला कि वो उससे नाराज़ है, और वो प्रॉपर्टी के पेपर्स उसके सामने रखते हुए बोली, वैसे तुमने बताया मेरा अपने बाप को, फिर भी उसने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी। काफ़ी हैरान कुन बात है ये। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे बताया ही ना हो? पेपर्स अच्छी तरह चेक करते हुए अमान ने उससे पूछा। सनग्लासेस के पीछे छुपी हुई आंखें बिल्कुल संजीदा थीं। वो अमान, मैं बताने ही वाली थी, लेकिन हकलाते हुए उसने बमुश्किल इतनी ही बात बोली जितनी वो यहाँ आने से पहले खुश थी। उसने सोचा भी नहीं था कि अमान ऐसा भी कुछ उससे पूछ सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने वाकई उसे नहीं बताया और ऐसे ही मुंह उठाकर चली आई हो? मैंने तुम्हें क्या कहा था कि काम पूरा होने के बाद मुझसे मिलना। ना चाहते हुए भी वो मीना पर गुस्सा हो गया और उस काम को जल्दी से जल्दी वो ख़त्म करना चाह रहा था, और मीना ने अभी शम्स को आगाह भी नहीं किया था। अमान, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं आज ही बता दूंगी ना उन्हें। रिलैक्स हो जाओ प्लीज़। आसपास लोगों को अपनी जानिब मुतवज्जो पाकर वो शर्मिंदा हुई और उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगी। अच्छा, तुम जाओ फिर घर और अपने बाप को आज ही बताओ इस सब के बारे में, और तुम्हारे ये कागजात मेरे पास ही हैं। शमसुद्दीन को सब बताकर कि कैसे मैंने तुम्हें कहा कि प्रॉपर्टी अपने नाम करवाओ। जैसे ही वापस आओगी मैं निकाह के पेपर्स रेडी रखूँगा और उसी वक्त हम निकाह कर लेंगे। फाइल अपने पास करते हुए उसने मीना को मेंटली प्रिपेयर किया, जिसे आमान ने नागवारी से देखते हुए अपने हाथ को नीचे से फ़ौरन निकाला। वो फाइल उठाता उठ खड़ा हुआ और टेबल पर चंद नोट रखते बाहर निकल गया। उसके जाते ही मीना ने आधे पैसे टेबल पर छोड़े और बाकी उठा लिए, और जैसे ही पीछे मुड़ी तो सामने शाकिर को हंसते हुए खुद को तकते पाया। एक पल के लिए उसका रंग फक हुआ, लेकिन उस वक्त वो पब्लिक प्लेस पर थी, इसलिए उसे यकीन था कि यहाँ शाकिर उसे कुछ नहीं कह सकेगा। उसे इग्नोर करके मीना साइड से निकलकर तेज तेज कदम उठाती बाहर की जानिब बढ़ी। उसकी कोशिश जल्द अज जल्द अपनी गाड़ी के पास पहुंचने की थी, लेकिन शाकिर भी बड़े बड़े कदम उठाता उसके साथ ही बाहर आया और पार्किंग एरिया के पास उसे बाजू से पकड़कर अपने सामने ले आया। उसकी इतनी हिम्मत पर मीना की आंखें हैरत से खुल गईं। चलो शुक्र है, आधा काम तो कर दिया इस दिमाग से फारिग लड़की ने। फाइल को बैक सीट पर फेंकते अमान खुद से बुड़बुड़ाया, और जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की उसकी नज़र सामने एक पिलर के पास खड़ी मीना पर गई, जिसके पास एक गुंडा टाइप आदमी खड़ा था, और मीना लगातार कुछ न कुछ बोल रही थी और साथ ही साथ अपनी पेशानी भी साफ कर रही थी। वो थोड़ी देर उन्हें देखने लगा, फिर गाड़ी का गेट खोलकर बाहर आया और साइड से छुपते हुए आकर उनके पीछे वाले पिलर की ओट में खड़ा हो गया। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। इसी वजह से मैं आजकल अमान के पीछे हूँ, ताकि तुम्हारे पैसे लौटा सकूँ, लेकिन तुम हर वक्त मेरा पीछा क्यों करते रहते हो? उसे वहाँ खड़े होते ही मीना की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, तो वो गौर से उनकी बातें सुनने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे इतना बड़ा काम करवा के भाग गई तुमने क्या सोचा था कभी तुम मेरे हाथ नहीं लगोगी? और जब मैं सामने आया तो तुमने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वाह, 2 माह पहले तो तुमने मेरे लिए जो काम किया था ना, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुमने तो मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी, मेरे रास्ते का कांटा, उस दिल को मरवाया था मैंने, कैसे भूल सकती हूँ मैं?
प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़ दो अभी अमान इधर ही होगा, वो कहीं मुझे और तुम्हें साथ ना देख ले। मैं वादा करती हूँ अगले 2 दिन तक तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। जहाँ 2 मंथ वेट किया है वहाँ 2 दिन और भी इंतज़ार कर लो प्लीज़। इल्तजा आमेज़ लहजे में उसकी मिन्नतें करते वो एहतियातन इधर उधर भी देख रही थी। मान जैसे जैसे उन दोनों की बातें सुन रहा था उसकी पेशानी की रगें उभर रही थी, उसकी आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारा हो रही थी, जैसे अभी उनमें से खून टपकने लगेगा। उस वक्त उसकी आंखों में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। यहाँ तो वो हो गया था जिसका उसे ज़रा बराबर भी अंदाज़ा न था। मैं ये सोचता रहा कि गलती से एक्सीडेंट हुआ और इस सब के पीछे ये घटिया लड़की थी। इस घटिया लड़की की वजह से मेरी दिल मौत के मुंह से लौट कर आई है। 2 महीनों से वो बेहोश रही और अभी भी वो अपने पाँव पर नहीं चल सकती, सिर्फ इस औरत की वजह से, शमसुद्दीन की बेटी की वजह से, जिसके ज़रिए मैं अपना बदला ले रहा हूँ और ये मुझे मज़ीद बदले की वजह दे रही है। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि अमान शाह की बीवी को जान से मारने की कोशिश करे। मुठ्ठियां भींचे वो गुस्से से पिलर की ओर से बाहर आया तो वहां ना मीना थी और ना ही शाकिर दादा। जब तक वो अपनी सोचों और गुस्से से बाहर आता वो जा चुके थे। अचानक से कहाँ गायब हो गई ये? उनकी जगह को खाली देखकर वो इधर उधर देखने लगा तो उसे मीना अपनी गाड़ी में बैठते हुए नजर आई और शाकिर कहीं भी नजर नहीं आया। अमान ने कुछ सोचते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की और एक लंबी सांस हवा के सपुर्द की। फिर उसने सेल निकालकर मीना को टेक्स्ट किया और कदम अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा दिए। उसके मिशन में अब शम्स के साथ साथ मीना से बदला लेना भी शामिल हो गया था। अमान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतने दिनों तक उसके साथ रही और उसके साथ बाहर आना, अमान के साथ मिलना। एक बार भी उसने अमान को ज़रा सा भी शक नहीं होने दिया कि वो उसके साथ रहते हुए उसकी दुनिया उजाड़ने की कोशिश कर चुकी है। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए वो 10 मिनट में अपने घर पहुंचा तो हॉल में सब बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे, जहां आज फिर से मुराद आया हुआ था। उस बेचारे ने अब पक्का ठान लिया था कि जब तक जूनी उससे शादी के लिए हाँ नहीं करती वो यहाँ आता रहेगा और अपनी कोशिशें भी जारी रखेगा। उन्हें सरसरी सा सलाम देते हुए वो हॉल में रुके बगैर अपने कमरे में चला गया तो दिल हैरान होती हुई उसकी पुश्त को देखने लगी, जबकि मुराद और जुनैरा ने तो इतना नोटिस नहीं लिया। वो दोनों इश्मल के साथ लगे हुए थे और उससे फैसला करवा रहे थे कि उसे मुराद अंकल ज़्यादा अच्छा लगता है या मामा। वो उलझी हुई कभी एक को देख रही थी तो कभी दूसरे को। उसे दोनों बराबर पसंद थे, या वो किसी एक का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए एक का भी इंतखाब नहीं कर रही थी। दिल भी अमान के पीछे पीछे अपनी व्हील चेयर घसीटते कमरे में चली गई। वो अमान का रवैया देखकर खुद परेशान हो गई थी। वो हमेशा घर आने के बाद सबके पास बैठता और बातें करता था। आज मुराद भी आया हुआ था, फिर भी उसने सबको इग्नोर किया। वो अमान के रवैये को समझ ना पाई। मान क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो हैं? कोट उतार कर बेड पर फेंकते वो ग्लास डोर के पास खड़ा बाहर देख रहा था। दिल की आवाज़ सुनकर वो मुस्कुराते हुए पीछे की जानिब पलटा तो वो अपने पाँव पर खड़ी थी। 2 दिनों से वो खुद भी बहुत कोशिश कर रही थी और आज ही फिजियोलॉजिस्ट ने उसे पकड़कर लॉन में 3 चक्कर लगवाए थे। इसके बाद वो खुद भी चल रही थी तो काफ़ी चल पा रही थी। डोर के पास पहुंचकर वो खुद व्हीलचेयर से उठ गई ताकि अमान उसे देखकर खुश हो जाए, और ऐसा हुआ भी। वो दिल को चलते देखकर बेयकीनी से उसकी जानिब तेज़ी से बढ़ा और दिल को शोल्डर से थाम लिया, मुबादा वो गिर ही ना जाए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या मेरी परी ठीक हो गई है? आज अपने मान को इतना खुश कर दिया तुमने, मेरी दिल खुद चल पा रही है। उसकी पेशानी को होंठों से छूते अमान ने दिल को बेड पर बिठाया। आज मीना की बातें सुनकर जितना मेंटली वो अपसेट हो चुका था, दिल को अपने पाँव पर चलते देखकर वो उससे कहीं ज़्यादा खुश हो गया था और बार बार एक ही सवाल करने लगा कि उसकी दिल ठीक हो गई है। आप परेशान थे ना अमान? आपने बाहर किसी से बात भी नहीं की, क्या हुआ? मान के हाथों पर अपना हाथ रखते दिल ने पूछा तो अमान को उससे सही वाली बीवियों जैसी फीलिंग्स आई जो अपनी बात को टालकर अपने शोहर की परेशानी को कम करने की कोशिश कर रही थी। मैं बताऊंगा ना तुम्हें अपनी परेशानी वाली बात भी, बट मेरी चंदा मुझे ये बताए कि अब चलते हुए टांगों में दर्द तो महसूस नहीं होता ना? अगर होता है तो अभी ऐसे हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी? मेरी दिल को कंप्लीट ठीक होने दो, फिर चलना फिरना भागना जो मर्जी करना।
दिल का हाथ पकड़कर होंठों से लगाते अमान ने उससे पूछा और मसनूई गुस्सा करते हुए डांट भी दिया, नहीं मान, बस ऐसे लगता है कि थक गई हूँ बस, लेकिन दर्द नहीं होता, अब मैं चल सकती हूँ। बेड से नीचे की अपनी टांगें देखते हुए दिल ने उसे जवाब दिया तो अमान ने उसे हक कर लिया, देखा ना, अल्लाह ने मेरी दिल को कितना जल्दी ठीक कर दिया, तुम वैसे ही कितनी उदास हो गई थी। प्यार से उसे खुद से अलग करते अमान ने उसका चेहरा थाम कर कहा, लेकिन मेरे चेहरे से निशान तो खत्म नहीं हुए ना अभी। दिल ने अपने गालों को छूते फिर से उदासी से कहा, कोई नहीं, अब तो इतना नज़र भी नहीं आते और मेरी दिल की प्यारी आंखें और भी प्यारी हो गई हैं। अब तुम इस चेहरे के लिए कुछ भी और नहीं बोलना, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगा तुमसे। अब हंस कर दिखाओ। आप बताएं अपनी परेशानी मान, मुझे ही हंसाए जा रहे हैं कब से। उसने याद आते पीछे होकर पूछा तो अमान अल्फाज को मन ही मन में तरतीब देने लगा, दिल एक्चुअली मुझे कुछ बताना था तुम्हें। वो अभी उसने थोड़ी सी बात ही बोली थी कि डोर नॉक होने लगा। नॉक होने की वजह से दोनों मियाँ बीवी उस जानिब मुतवज्जो हुए। आ जाओ। अमान ने नॉक करने वाले को आवाज़ दी, लेकिन दिल का हाथ अभी भी उसके हाथ में था। डोर खोलते ही बेधड़क अंदर आने वाले को देखकर जहां अमान ठिठका, वहीं दिल भी हैरत से उसे देखने लगी। लेकिन आने वाले को तो जैसे सांप ने सूंघ लिया हो। उसके चेहरे पर एक ही पल में कई रंग आकर गुजरे। मीना डोर में खड़ी फक चेहरा लिए दिल को अपने सामने बैठे देख रही थी। उसे अपने सर पर आसमान गिरता महसूस हुआ। भला उसने कब सोचा था कि ऐसे भी दिल से उसका सामना हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि इश्मल को मैं अच्छा लगता हूँ, है ना इश्मल। वो तीनों लड़ते लड़ते अब किचन में दाखिल हो चुके थे। इश्मल ने उन दोनों को लड़ते देखा तो भूख का बहाना बनाया ताकि वो दोनों उस बात को भूल जाएं कि उसे कौन ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो यहाँ भी बाज नहीं आए थे। जुनैरा इश्मल के लिए कुछ बनाने लगी तो मुराद उसके साथ टेबल पर बैठते हुए अपने हक में वोट लेने की कोशिश करने लगा। मुराद अंकल, इश्मल को आप और मामा दोनों बराबर अच्छे लगते हैं, और कितनी बार बताऊं मैं आपको। अपने छोटे छोटे हाथों को पेशानी पर मारते हुए उसने एक बार फिर से 100 बार कही हुई बात दोहरा दी। मैं समझ गया आपको मैं अच्छा ही नहीं लगता हूँ। खैर, बेशक कह सकती हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। इश्मल से दूर होते मुराद ने मासूम सी शक्ल बनाते उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया तो जुनैरा पलट कर उसे घूरने लगी। तो वाह, कितने शातिर हो ना तुम। उल्टे हाथ कानों से लगाते जुनैरा बोली, लेकिन मुराद ने अपनी मासूम शक्ल को मासूम ही रहने दिया। वो आज इश्मल से अपने हक में जवाब लेने के दरपे था। मुराद अंकल, आप परेशान ना हो, मुझे मामा से ज़्यादा आप अच्छे लगते हैं। मासूम बच्ची मुराद की चालाकी को समझ ही नहीं सकी और झट से उसे परेशान देखकर मुराद के हक में वोट दे दिया। ये सुनकर मुराद के पूरे दांत ही बाहर आ गए। उसने इश्मल को उठाकर चटाचट प्यार करके उसके गालों को सुर्ख कर दिया। देखा ना मेरा बच्चा कितना अच्छा है, लव यू सो मच मेरी इशी बेबी। आज चाहे मामा भेजे या ना भेजे, मैं आपको बाहर ज़रूर लेकर जाऊंगा और हम बहुत सारा टाइम मस्ती करेंगे। मामा को बोल दो अगर उन्होंने भी चलना हो तो चल सकती हैं, क्योंकि फ्यूचर में भी हमारे साथ ही जाना पड़ेगा इन्हें। मुंह बनाए खड़ी जूनी को देखते मुराद ने मायनी खेजी अंदाज में कहा तो इश्मल उसकी बात दोहराते हुए जुनैरा को बताने लगी जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसे क्या मालूम कि मुराद फ्यूचर की बात क्यों कर रहा है। फ्यूचर क्या होता है, मुझे नहीं जाना कहीं, और जाओ अपने मुराद अंकल के साथ और वहीं इनके साथ खाना खाकर सो भी जाना। सुला देंगे ये तुम्हें वहीं अपने साथ। मुराद की मुस्कुराहट उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो पाँव पटकती वो वहाँ से वॉक आउट कर गई। मामा नाराज़ हो गई ना। जुनैरा को जाते देखकर इश्मल उदासी से बोली। उसे इसी बात का डर था कि एक को अच्छा कहूँगी तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। अमान, तुम तो कह रहे थे कि दिल को अमान के पास बैठे हुए देखकर मीना का वजूद झटकों की जद में आया था। वो हकलाते हुए अमान से पूछने लगी। उसका चेहरा फक हुआ था, जैसे किसी ने सारा खून निचोड़ कर बाहर निकाल दिया हो। मैं कब कह रहा था, और ये क्या तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया है? दिल तो तुम्हारी बहन है ना, क्या तुम्हें दिल को सही सलामत देखकर खुशी नहीं हो रही? उसकी उड़ी रंगत को देखते हुए अमान ने पूछा तो मीना ज़बरदस्ती मुस्कुराने लगी। हालांकि उस वक्त उससे बिल्कुल भी मुस्कुराया नहीं जा रहा था। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो दिल को जिंदा देखकर ज़रा बराबर भी खुश नहीं है। मैं खुश तो हूँ, लेकिन
बहुत खुश हूँ। दिल को देखकर कैसे नहीं खुश होंगी अमान, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। जबरन मुस्कुराते हुए वो जाकर उनके पास खड़ी हो गई, लेकिन अमान दिल का हाथ छोड़कर नहीं उठा और ना ही उसे अपने पास से उठने दिया। मिलोगी नहीं मुझसे दिल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यार। पता है जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं कितनी परेशान हुई, मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब तुम ठीक हो। तुम्हें ऐसे ठीक देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। अमान के हाथ को नागवारी से देखते हुए वो दिल को वहां से उठाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अमान की लो देती नज़रों और दिल का प्यार से हाथ थामे हुए उससे बिल्कुल भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आपसे मिल सकती तो ज़रूर मिलती, बट मैं उठ नहीं सकती थी और ना ही चल सकती हूँ। मीना को सामने देखकर उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। उसे वो सब याद आने लगा जब वो उनके घर में रहती थी तो मीना अपनी माँ के साथ मिलकर उसके साथ कैसा सलूक करती थी। ऊपर से उसका अमान को मुखातिब करना उसे एकांक नहीं भाया, इसलिए संजीदगी से कहते वो अपनी जगह से नहीं उठी। अलबत्ता अपनी बात पर दिल ने अपने हाथ पर अमान का दबाव हल्का सा ज़रूर महसूस किया, जैसे उसे दिल की बात पसंद ना आई हो और ऐसी बातें करने से मना कर रहा हो। ओह गॉड, तुम पैरालाइज्ड हो गई हो। मसनूई दुख से वो मुंह पर हाथ रखते हुए उससे ऐसे पूछने लगी जैसे उसे बहुत बड़ा सदमा लगा हो उसको देखकर। जस्ट शट अप मीना, दिल बिल्कुल ठीक है। अमान को उसकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी तो दिल की जगह गुस्से से उसे जवाब देने लगा। अमान प्लीज़ आप गुस्सा ना करें, बल्कि आप जाएं ना, जूनी आपी को कहें कि मीना आपी के लिए कुछ भिजवा दें, आज मुझसे मिलने आई हैं। उसकी सुर्ख होती हुई आंखों को देखकर दिल ने जल्दी से उसका हाथ थामा और मुल्तजियाना अंदाज में उसे कहने लगी, ओके ख्याल रखना, मैं भिजवाता हूँ। अमान को तो उसकी शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा था। जब से अमान ने उसकी और शाकिर की बातें सुनी थी उसका बस नहीं चल रहा था कि मीना की जान ले ले, लेकिन अभी वो कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। उसने मीना के लिए कुछ खास सोच कर रखा था। अमान ने ही मीना को घर बुलाया था ताकि जिन हवाओं में वो उड़ रही है उसे ज़मीन पर ला पटके, और दिल को देखते हुए मीना के चेहरे पर छाए तासुरात उसके दिल में ठंडक पैदा कर रहे थे, लेकिन वो भी अमान के दिल में लगी हुई आग को बुझाने में कामयाब नहीं हुए। दिल के गाल को प्यार से थपकते हुए वो वहाँ से चला गया तो मीना बाल झटकते हुए बेड पर उसके साथ आन बैठी। हाँ तो मिस दिल, तुम मौत के मुंह से वापस लौट कर आ गई हो, एक बार फिर से मेरे हक पर डाका डालने। अमान के बाहर जाते ही मीना ने फौरन अपने तेवर बदले और कड़ी नज़रों से उसे घूरते हुए पूछने लगी, क्या क्या मतलब आपका? मैंने आपके कौन से हक पर डाका डाला है? दिल ने हैरानगी से उसे देखते हुए पूछा। उसे मीना के बदलते तेवरों से कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि उसने मीना को हमेशा ऐसे ही देखा था। उसके पल पल बदलते रवैयों, ज़रा ज़रा सी बात पर बेइज्जत करना उसे आज भी याद था। अमान से मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरी उससे शादी नहीं हो सकी। तुम्हारे मरने की देर थी कि वो मेरा हो जाता, लेकिन तुम मीसनी, तुम्हें तो मौत ने भी वापस भेज दिया। बस अब मैं तुम्हें अपना हक मारने नहीं दूंगी, मैं तुमसे अमान को छीन लूंगी। वैसे भी वो एक लंगड़ी और पैरालाइज्ड लड़की के साथ रहकर क्या करेगा? तुम किसी भी एंगल से उसकी वाइफ नहीं लगती। वो तो मेरे साथ चलता हुआ अच्छा लगता है और हम काफ़ी क्लोज भी आ चुके हैं। आंखें घुमाते हुए मीना ने उसका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए दिल को माजूरी के ताने भी देने लगी। मीना आपी, अगर आपको याद हो तो मैंने अमान से शादी आपकी वजह से ही की थी, क्योंकि तब आपका आशिक कोई और था। और जब मैं अब अपनी ज़िंदगी और घर में खुश हूँ तो आप यूँ मेरे और अमान के दरमियान कभी नहीं आ सकती। यह आपकी भूल है। वो जब से कोमा से उठी थी उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अमान जूनी से हंसकर बात करता है, जिसकी एक बेटी भी है, तो मीना की बातें कैसे बर्दाश्त कर लेती। अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो दिल, अपनी औकात भूल रही हो शायद तुम। 2 दिन अमान के साथ क्या गुजार लिए, तुम्हारे मुंह में तो ज़ुबान ही लंबी होना शुरू हो गई। दिल का बोलना तो उससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। अपनी बारी पर वो उसे हर्ट करने के लिए जानबूझकर ऐसी बातें कर रही थी। मैं खुद से रिफ़्रेशमेंट का सामान लेकर आ गया हूँ दिल, इसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? वो वापस रूम में दाखिल हुआ तो साथ में ट्रॉली भी लेकर आया जिस पर सिर्फ चाय मौजूद थी। दिल को मीना के पास अकेले छोड़कर जाने के बाद अमान को परेशानी ने आ घेरा था
اس لیے جلد ہی واپس آ گیا۔ ایک عورت جو پہلے اس کی دل کا اتنا بڑا ایکسیڈنٹ کروا سکتی تھی، کیا وہ دوبارہ کچھ نہیں کر سکتی تھی؟ نہیں امان، میں کیوں اسے تنگ کروں گی؟ بہنوں کو بھی کوئی تنگ کرتا ہے بھلا، ہے نا دل؟ دل کے بولنے سے پہلے ہی مینا جلدی سے امان کو بتانے لگی، مبادا وہ امان کو اس کی باتیں ہی نہ بتا دے۔ لیکن امان اپنے دل کے چہرے کی اداسی کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ یہاں ضرور کچھ ہوا ہے۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن آپ میری بہن نہیں ہیں اور نہ ہی ہو سکتی ہیں۔ اسے اچھا سا جواب دیتے ہوئے دل رخ موڑ کر لیٹ گئی۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ وہاں سے جا سکتی ہے اب۔ دل آرام کرنا چاہتی ہے، تم پلیز باہر چلو، اور یہ چائے تمہارے لیے بھیجی ہے امان نے، اسے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ دل کو لیٹتے دیکھ کر امان نے مینا کو وہاں سے بھیجنا چاہا، جو منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے اٹھ بھی گئی اور ٹرالی غصے سے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب چلی گئی۔ میری پیاری دل اپنے امان سے ناراض ہو گئی ہے کیا؟ مینا کے جاتے ہی امان اس کے پاس آیا اور دل کو منہ پر بازو رکھ کر لیٹے دیکھ اس سے پوچھنے لگا، نہیں امان، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ جائیں، مینا آپی آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ آفٹر آل کافی کلوز آ چکے ہیں نا آپ دونوں۔ آنکھوں میں غصے اور جلن کی جھلک لیے وہ امان پر بھڑکی تو اس کے لبوں پر تبسم پھیل گیا۔ اس کا امان پر طنز کرنا اسے اچھا لگا تھا۔ ارے ہاتھ ہٹاؤ تو میں دیکھوں کون جیلس ہو رہا ہے۔ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے امان نے زبردستی اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تو دل غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اللہ اللہ، اتنا غصہ! میری پری کی ناک پر تو اتنا غصہ کتنا پیارا لگتا ہے۔ اب سے میں روزانہ اپنی سہیلیوں کو لے کر آیا کروں گا تاکہ اپنی پیاری وائف کا غصہ دیکھ سکوں۔ دل کی جلن سے لطف اندوز ہوتے وہ مزید اسے تنگ کرنے لگا تو اس کی آنکھوں میں نمی امڑنا شروع ہوئی۔ میں تو مذاق کر رہا ہوں یار، ایک تو تمہاری برسات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایک دم سے شروع ہو جاتی ہے۔ کیا تمہیں مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے؟ میں مینا کے بارے میں ہی تمہیں بتانا چاہ رہا تھا سب کچھ۔ مانتا ہوں کہ تمہاری بیماری میں اس سے ملتا رہا ہوں، بٹ کبھی بھی تم سے غافل نہیں ہوا ہوں میں۔ میرے دل، میری روح اور میرے خیالات میں صرف اور صرف میری دل ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی تو محض صرف بدلہ لینا چاہتا تھا میں تم سے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میری دل ہی میرا نصیب عشق ہے۔ میں مینا سے صرف اس لیے مل رہا تھا تاکہ میں اس کے ذریعے اپنا اور آنٹی کا بدلہ لے سکوں۔ میں اپنے مشن کے آخر میں پہنچ چکا تھا کہ میرے سامنے ایک نیا پہلو آ گیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ نیا پہلو ہے کیا؟ وہ کافی غور سے امان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ امان کی باتیں اس کے دل کو خوشی پہنچا رہی تھی۔ اس کے سوال کرنے پر دل اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو امان نے اپنی بات جاری رکھی، تمہارا ایکسیڈنٹ محض ایک حادثہ نہیں تھا میری جان، اس سب کے پیچھے مینا کا ہاتھ ہے۔ اس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تاکہ وہ تمہاری جگہ میری زندگی میں آ جائے، لیکن اللہ پاک نے تمہیں بچا لیا، اور میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ اللہ نہ کرے کہ تمہیں کچھ بھی ہو، بٹ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ جاذب لہجے میں کہتے اس نے دل کے ہاتھ کو چھوا، لبوں سے چھوا، جبکہ وہ امان کی باتیں سن کر حیرت سے آنکھیں بڑی کیے اس کی جانب دیکھے گئی، جیسے اسے اس بات پر یقین ہی نہ آ رہا ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کے تاثرات موجود تھے۔ اس کی سوچ میں مینا اتنی شفاف تو نہیں ہو سکتی تھی۔ امان ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مینا آپی یہ سب میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے ان کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، وہ بھول گئیں اور مجھے ہی مارنے چلی آئیں۔ اب بھی وہ مجھے آپ کے ساتھ خوش نہیں ہیں دیکھ کر، حالانکہ انہوں نے خود انکار کیا تھا اس شادی سے۔ دکھی لہجے میں اس نے امان سے دوبارہ پوچھا۔ ابھی اسے مینا کی جلی کٹی باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ وہ واقعی اتنا گر چکی ہے۔ جی، اسی نے کیا ہے یہ سب کچھ، اور میں خود اس کی باتیں سن کر آ رہا ہوں۔ تم کیا سوچتی ہو کہ میں اس عورت کو کبھی بھی امپورٹنس دوں گا جس نے مجھ سے میری زندگی کو چھیننے کی کوشش کی ہے؟ پاگل، کبھی بھی نہیں۔ وہ صرف ایک لالچی عورت ہے اور کچھ نہیں۔ اسے اپنے مفاد کے آگے کسی کی جان کچھ بھی نہیں لگتی۔ آرام سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے امان نے اسے وہ سب باتیں بتائیں جو اس نے شاکر اور مینا کی سنی تھی۔ امان، آپ کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے بھیگی آنکھوں سے امان سے پوچھا تو اس کے چلتے ہوئے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کیسے جی سکتا ہوں دل؟ کیا تمہیں میرے پیار، میری محبت کا اندازہ نہیں ہے؟ میں تمہیں جنون کی حد تک چاہنے لگا ہوں، بٹ پتہ نہیں تمہیں کیوں ہر بار مجھ پر شک ہوتا رہتا ہے یار۔ خیر، تمہیں واقعی آرام کی ضرورت ہے۔ تمہارے سوال کا جواب یہی ہے کہ میں تمہیں ایک ہی صورت میں چھوڑ سکتا ہوں، اور وہ صورت میری موت ہوگی۔
संजीदगी से कहते अमान ने उसके बालों से हाथ हटा लिया और साइड पर होकर बैठ गया। इतनी बातें बता बता कर भी वो अपने वही बेवकूफ़ाना सवालात पूछ रही थी। अमान सॉरी, मैंने आपको हर्ट कर दिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं आप पर हरगिज़ शक नहीं करती हूँ अमान। अमान को नाराज़ होते हुए देखकर वो फ़ौरन उठकर बैठ गई और उससे सॉरी भी करने लगी। अमान का मूड जो अब ख़राब हो चुका था, दिल की मासूमियत पर उसने आंखों में मोहब्बत का जहान लिए उसको देखा तो वो मुस्कुरा उठी। शायद उसने भी अमान की कमज़ोरी पकड़ी हुई थी कि वो उसका डिम्पल देखकर नाराज़गी दूर कर देगा, लेकिन उसे असल झटका तो तब लगा जब अमान उठकर डोर की जानिब बढ़ गया। उसके बढ़ते हुए कदम देखकर दिल की मुस्कुराहट थमी और डिम्पल वापस कहीं छुप गया। वो बेड से उठी और जितना चल सकती थी छोटे छोटे कदम डालते अमान के पीछे जाने लगी। तभी अमान डोर लॉक करते वापस दिल के पास आया और उसे बाहों में भरते बेड तक ले आया। मैं नाराज़ कैसे हो सकता हूँ, खासकर जब दुश्मन जान अपना प्यारा सा डिम्पल दिखा दे तो। लाइट ऑफ करते हुए वो दिल के कान में सरगोशी करने लगा तो मद्धम मद्धम रोशनी में भी उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था।